Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. I would first of all like to thank everyone who watched the previous video. काफ़ी अच्छी लग रही है लोगों को, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है उसमें, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. एंड एज यू गाइज ऑलरेडी नो, मैंने पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से कोई भी वीडियो नहीं निकाली है, ना ही कोई स्ट्रीम की है. सो टुडे वी हैव 2 weeks वर्थ ऑफ juicy fun tech news, guys. Of course, what else are you gonna find here, you simps, right? Anyways, it's all gonna be GPUs today, guys. So पूरी वीडियो देख लेना. फ्यूचर की वीडियोस में आज की न्यूज़ का रेफरेंस देख के अपना सर मत खुजाने लगना कि भैया ये क्या हो गया, ये कब हो गया. Speaking of which, according to some rumors, Nvidia is scratching Samsung's back so that they can use their new 8nm nodes in their next generation RTX 3000 Ampere GPUs, which is kinda unexpected क्योंकि Nvidia की previous announcements के हिसाब से अगर देखें तो वो RTX 3000 के लिए TSMC के 7nm प्रोसेस को यूज करने वाले थे. But these things can in fact change by the day as the research and the development for the product goes forward in the pipeline. So it wouldn't be a surprise if this turns out to be true. And मैं इसके ऊपर इतना यकीन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि the leaker in question जिसने लीक किया है has an excellent track record for RTX 3000 series leaks and had the die configuration, जो GPU की die configuration होती है, down to the nail months before anyone was even talking about the damn thing. Okay? And recently Igor's Lab ने भी इस चीज़ को confirm किया है from their side as well, stating that they are 100% sure कि 8nm प्रोसेस पर Nvidia आ गया है Samsung के इंस्टेड ऑफ 7nm प्रोसेस फ्रॉम TSMC. नाउ इस सब चीज़ के बाद भी आई डू रिकमेंड दैट यू टेक दिस वन विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, बट इफ यू थिंक अबाउट इट, इफ यू ट्रूली थिंक अबाउट इट, दिस डज मेक अ लॉट ऑफ सेंस फॉर Nvidia. Nvidia ने TSMC के 7nm डाइस को पहले ही यूज कर लिया है टू मेक द high-end cards, right? And I'm talking about the gaming cards. ना gaming cards की बात नहीं कर रहा हूँ मैं. I'm talking about Teslas. Okay, Teslas. That's where the real money is made. And while it is true कि TSMC के 7nm nodes ज़्यादा energy efficient है compared to Samsung's 8nm nodes, जो कि kind of glorified 10nm process node है. Samsung की 8nm nodes are likely cheaper in price compared to TSMC 7nm. ठीक है, एनर्जी ज़्यादा है लेकिन उससे काफ़ी सस्ती है, लाइक काफ़ी. ऑल्सो AMD being a huge customer of TSMC has a lot of production lines already booked for TSMC to make more wafers for them, जिसकी वजह से शायद Nvidia को अपने लिए sufficient amount of 7nm के chips ना मिल रहे हो. Because guys, Nvidia कोई मिलियंस और हाफ अ मिलियंस ग्राफिक्स कार्ड्स नहीं बनाता है साल के, बहुत सारे बनाता है. इनफैक्ट मार्केट का, इफ आई एम नॉट करेक्ट, 75% शेयर अभी भी Nvidia के ही पास है GPU मार्केट का. डोंट कोट मी ऑन दैट, आई एम जस्ट काइंड ऑफ याद नहीं है मेरे को, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ही है. सो ऑल थिंग्स टुगेदर creates a high probability of Nvidia really shifting to Samsung, क्योंकि Samsung के पास इतना कैश रिजर्व है कि वो सस्ते में Nvidia को 8nm दे सके, बहुत ज़्यादा सस्ते में, एंड दे हैव इनफ वॉल्यूम ऑफ इट सो दैट Nvidia कैन मेंटेन अ सूटेबल प्रोडक्शन लाइन. ठीक है ना, क्योंकि भैया Nvidia को चाहिए, राइट? एंड कंपेयर टू द करंट जनरेशन ऑफ Nvidia's GPUs जो कि 12nm पर बेस्ड हैं, जो कि अगेन ग्लोरिफाइड 16nm है, इवन 8nm फ्रॉम Samsung इज अ ह्यूज लीप. बस एनर्जी एफिशिएंसी का कुछ करना पड़ेगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, Nvidia हैव ऑलवेज created very energy efficient GPUs, so I think they will be able to manage it and get it under control. All right. That was a huge segment, bringing us perfectly to Nvidia's huge 627mm square फ्लैगशिप एम्पियर डाई. इस न्यूज का सोर्स भी एक नोन लीकर है, लेकिन इसके बारे में मैं खुद भी पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, तो आई जस्ट वांट टू रिपोर्ट इट सो दैट इफ इट डज टर्न्स आउट टू बी ट्रू, I can at least refer you guys to this video. Also, Nvidia अगर Samsung की 8nm डाई पर शिफ्ट होता है तो 627mm square would be the maximum size या रेटिकल they can cook up, क्योंकि इसके ऊपर अगर जाने तुम लगोगे तो तुम्हारा यील्ड काफ़ी कम हो जाएगा. thus increasing the price of the GPUs further. तुम्हारे जितना बड़ा तुम्हारा डाई साइज होता है GPU का,
उतना ही तुम्हारा जो होता है प्रोबेबिलिटी होती है कि तुम्हारा पूरा का पूरा वेफर खराब निकलेगा और तुम्हें पूरे के पूरे उस डाई को फेंकना पड़ेगा, राइट। ये सीपीयू चिप प्रोडक्शन का एक बहुत बड़ा जो होता है ब्लंडर है, ठीक है। अगर तुम ये समझ लो तुम्हारी इतना बड़ा चिप है और उसमें से आधा वेस्ट हो गया तुम्हारा, तो बाकी का जो आधा बना है उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, क्योंकि ये तुम्हारा वेस्ट हुआ है, इसका भी तुम्हें कंपनसेशन करना पड़ेगा उसी आधे से। सो इस वजह से इसको बोलते हैं हम यील्ड कम होना, उसका प्रोडक्शन कम होना। प्रोडक्शन कम होगा तो उसका प्राइस बढ़ेगा। प्राइस तो अगली जनरेशन में बढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल ही है, राइट। नाउ ये वाली डाई RTX 2080 Ti के कंपैरिजन में फिर भी छोटी लग सकती है, क्योंकि उसकी डाई 754 मिलीमीटर स्क्वायर की थी। बट वी हैव टू रिमेंबर अगेन कि वो एनवीडिया के 12 नैनोमीटर प्रोसेस पे बना था एंड ये सीधे 8 नैनोमीटर की तरफ जंप कर रहा है। तो इवन दो इसकी डाई का साइज छोटा है कंपेयर टू 2080 Ti, इसके ट्रांजिस्टर्स खुद ही इतने छोटे हैं उसके मुकाबले कि कम जगह में भी ज्यादा तुम्हारे को जो होता है ट्रांजिस्टर्स आएंगे, अलाउइंग 30% हायर डेंसिटी ऑन द डाई। सो छोटी डाई में तुम्हारे को बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी, क्योंकि ये वाली डाई मोस्ट प्रोबेबली 3080 Ti या मे बी 3080 या 3090 में यूज होगी। 3080 में तो नहीं होगी, 3090 या 3080 Ti के नेम में हमें को कंफ्यूजन है इस समय, उन दोनों में से किसी एक में यूज होगी। बट कम ऑन, these are not the cards that you are here for. You need to know about 3060s and 3070s, right? Well, here goes. According to a recent leak by Kopite7Kimi on Twitter, मुझे पता है लीकर्स के नाम पता नहीं है क्या सोच के रखते हैं अपने, जो कि एक बहुत ही prominent लीकर है. The next generation Ampere 3060 cards may feature a price point of $300 to $400. In his tweets में he said that Nvidia has taped out 2 new GPUs which includes the Ampere GA106 and GA107. GA106 कोड नेम है RTX 3060 के लिए, और ये वाले नेम्स कैसे डिराइव होते हैं मैं हर वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, आई बटन वाली वीडियो है वो जाकर देख लो. So yeah, 2060 series getting replaced by 3060 series at the same price point. And yes, I said series because GA106 डाइस के भी 2 या 3 अलग अलग SKUs होते हैं. 20 सीरीज में भी यही हुआ था, जैसे कि 2060 सुपर और 2060, और उसके अलावा एक और SKU था जो फुल फैट GA106 SKU था, वो 2070 में यूज हुआ था. Who's to say कि 30 सीरीज में भी ऐसा नहीं होगा, so that we can maybe get a 3060 सुपर और a TI. ऑफ कोर्स ये AMD पर भी डिपेंड करता है कि वो इस तरीके का कंपटीशन लेकर आते हैं, यानी कि एनवीडिया उसको रिफ्रेश करे और 3060 सुपर या TI निकाले. बट दैट्स अ होल डिफरेंट डिस्कशन ऑल टुगेदर. तो उससे रिलेटेड आर्टिकल मैं तुम्हारे को नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो अहेड एंड रीड इट आफ्टरवर्ड्स. यू विल ऑफ कोर्स लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. एंड दुनिया का दस्तूर है भाई कि नई चीज आते ही यू हैव टू किल द ओल्ड थिंग. आई मीन Nvidia at least does seem to think that, क्योंकि according to videocards.com Nvidia अपने 20 सीरीज के 4 GPU SKUs को प्रोडक्शन उनकी रोक रहा है पूरे तरीके से, effectively retiring these GPUs before the next generation GPUs become available for retail. वेल ये बहुत सही है. 10 सीरीज को भी इसलिए रोका था क्योंकि 20 सीरीज कोई नहीं खरीद रहा था, और अब 20 सीरीज को भी इसलिए रोक रहे हो क्योंकि अगेन 20 सीरीज कोई नहीं खरीद रहा है इन द एंटिसिपेशन ऑफ 30 सीरीज ऑफ GPUs. मैंने तो पहले ही कहा था. डीलिस्टिंग इंक्लूड्स GeForce RTX 2080 Ti, GeForce RTX 2080 Super, 2070 Super and 2070. Did I just discriminate between the names of 2080 and 2070? Well, yeah, I did. प्रोडक्शन को रोकने के और भी कई रीजंस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई खरीद नहीं रहा है, राइट. उसके अलावा उन्हें पता है कि जो होता है ये वाले GPU बिकने नहीं है, राइट. जैसे कि 10 सीरीज को उन्होंने रोका था, उन्होंने इसलिए रोका था क्योंकि 20 सीरीज कोई नहीं खरीद रहा था. 2080 बेसिकली कोई नहीं खरीद रहा था क्योंकि GTX 1080 Ti खरीद रहे थे लोग, और 2080 का प्राइस GTX 1080 Ti से ज़्यादा था सिर्फ और सिर्फ रे ट्रेसिंग के लिए, और रे ट्रेसिंग उस समय सिर्फ एक गिमिक था, बहुत बार बोल चुका हूँ. तो इस वजह से उन्होंने 10 सीरीज़ की प्रोडक्शन रोकी थी. लेकिन फॉर 20 सीरीज़
तो पहले से ही उसकी प्रोडक्शन को रोक रहे हैं और आई एम श्योर एनवीडिया ये नहीं चाहता था कि लोगों को ये पता लगे, बिकॉज ऑफ कोर्स दे वुड वांट पीपल टू कीप बाइंग देयर जीपीयूज, बट दैट्स नॉट द केस, वी नो इट। इसको रोकने के मैंने जैसा बताया और भी कई रीजंस हो सकते हैं, राइट। वन ऑफ द शेडी रीजंस इज कि एनवीडिया शायद आर्टिफिशियली जीपीयू प्राइसेस को इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन रुकने से मार्केट में एकदम से हाई एंड जीपीयूज की कमी हो जाएगी, जो कि अभी भी हो रही है। उसके ऊपर से और ज़्यादा कमी हो जाएगी तो जीपीयू के प्राइसेस बढ़ सकते हैं। उसके ऊपर से शायद सेकेंड वेव ऑफ क्रिप्टो माइनिंग इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड इन द नियर फ्यूचर, क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट दोबारा से माइनिंग की तरफ आ रहा है, क्रिप्टो की तरफ बेसिकली आ रहा है। तो ये सब फैक्टर्स मिला के देखें तो एनवीडिया गाली खाने के सारे काम कर रहा है, कोई मौका नहीं छोड़ रहा है ठीक है। बट डू नॉट वरी एवरीवन, अपना वॉलेट लेके अपना जो होता है खाली करने मत चलने जाना, ठीक है। ये क्रिप्टो माइनिंग वाली बात अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़ा र्यूमर है, ठीक है, एंड पक्का नहीं है कि ये होगा ही। तो काम डाउन, ओके, डोंट लेट दीज कंपनीज गेट व्हाट दे वांट आउट ऑफ यू। मत खरीदो, बल्कि अगर तुम्हारे 2080 Ti's और 2080 सुपर्स और 2070 सुपर्स और 2060 सुपर्स तुम्हारे पास हैं, तो एज मूर्स लॉ इज डेड सेड, अभी की अभी उनको बेच दो, इससे पहले कि 30 सीरीज आके उनका मर्डर कर दे, बिकॉज दे विल डू इट, कंफर्म है। एनवीडिया ने अभी से बंद कर दिया यार, तुम क्या चीज़ हो। तो लाइक सेल देम इफ़ यू कैन, सेल देम, किसी को चूना लगा दो, ठीक है। 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये कम में बेच दो। 2080 Ti तुमने खरीदा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है बट फॉर नाउ मूविंग ऑन टू Cyberpunk 2077, दे हैव रिमूव्ड wall running feature from the game as confirmed by the parent studio. Yeah, that's it. There's nothing more to say here. They removed it. F's in the comment section, guys. मैं सही बताऊं तो Cyberpunk को लेकर मैं सही बताऊं थोड़ा सा डर सा लगता है मुझे उस गेम को लेकर। उस गेम के लिए इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है, इतने टाइम से क्रिएटेड है कि इफ़ इट टर्न्ड आउट टू बी एनीथिंग लेस देन एन एब्सोल्यूट परफेक्शन, पीपल आर गोइंग टू रिप इट अपार्ट, एंड दे आर नॉट only going to rip apart the game, they are gonna rip apart the developer as well, and that worries me a lot as someone who now holds a voice among at least a small number of you, right, a small number of gamers and enthusiasts. I would just like to request all of you guys, please everyone, if it turned out to be not up to the mark, उसको ज़्यादा बुरा क्रिटिसाइज मत करना। डेवलपर्स अपना बहुत टाइम, मेहनत, बॉडी एंड सोल तुम्हारे एंटरटेनमेंट के लिए खर्च करते हैं यार। उस चीज़ को बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट दैट वाइल यू आर क्रिटिसाइजिंग द गेम, ठीक है। लेट इट गो, ओके, दैट्स जस्ट व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम माई कम्युनिटी, ओके, मेरी कम्युनिटी से, राइट। Great. Now let's talk about some motherboards because we have a new player in the market, everyone. Galax has entered the small group of motherboard manufacturers with LGA 1200 and AM4 motherboards. But अभी के लिए it's focused on USA only. We don't know कि इंडिया में वो आएंगे या नहीं. But it is very likely कि वो आएंगे. इंडिया बहुत मेजर मार्केट है बजट मदरबोर्ड्स के लिए, और Galax बजट के लिए चीज़ें निकालता है, because they are focusing with these motherboards as well on mid and low range of motherboards. I mean, no surprise there. Galax हमेशा से ये करता है. For Intel, they will mainly focus on affordable H series, and for AMD, they will go with B550 series and basically B series in general, right? By the way, अभी हमें ये नहीं पता है कि गैलेक्स इनको खुद मैन्युफैक्चर करेगा या फिर इनको आउटसोर्स करेगा। वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट द VRM परफॉर्मेंस। सो सब्सक्राइब कर लो एंड प्रेस द बेल आइकन so that you don't miss when I cover this topic in the future. And all of these motherboards are allegedly gonna be in the range of sub 100 USDs. तो इंडिया के हिसाब से लगा लो 8 से 12 हज़ार वाली प्राइस रेंज में। दैट्स अ ग्रेट प्राइस इफ यू आस्क मी। फाइनली फॉर टुडे, PlayStation 5 का प्री ऑर्डर पेज Amazon.com पे लाइव हो चुका है, बट अभी तक
किसी को भी प्राइसिंग का कोई अंदाजा नहीं है। मैनी फैंस एंड लीकर्स आर गिविंग देयर प्रेडिक्शंस ऑनलाइन, बट मुझे पूछो तो मैं इनमें से किसी पर भी अभी भरोसा नहीं करूंगा। इधर वे अगर पेज लाइव हो गया है तो 2 या 3 दिनों में प्राइजेस भी पता लग ही जाएंगे, बिकॉज अभी के लिए तो अगर तुम पेज से ऑर्डर करने जाओ तो वहां पर प्रोडक्ट अनअवेलेबल दिखाता है वो, ठीक है। सो हेयर्स टू होपिंग फॉर अ $500 प्राइस टैग और मे बी लेस। आई नो आई एम आस्किंग फॉर टू मच गॉड, बट प्लीज 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 fingers crossed, we will know in due time whether Indian budget gamer community will be able to afford a PS5 or not, and I'll be reporting and giving my opinion on it as well. So subscribe and press the bell icon on the channel so that you don't miss any of it. ठीक है, अभी के लिए किसी भी तरीके की प्राइसिंग पर बिल्कुल यकीन मत करना। और वैसे तो प्री ऑर्डर सिर्फ यूएसए के लिए ही खुलेगी, लेकिन तुम्हारे जितने भी यूएस वगैरह में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं ना, हिंदी में बता रहा हूँ, किसी ने भी अगर प्री ऑर्डर कर दिया ना तो दौलत्तियाँ खाओगे मुझसे, ठीक है। ये नहीं किसी भी प्रोडक्ट को प्री ऑर्डर नहीं करते हैं, कभी भी नहीं करते हैं, खासकर टेक के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। सो नो प्री ऑर्डर्स, ओके। ऑल्सो आई गो लाइव एवरी मंडे ऑन द चैनल वेर यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस अबाउट योर पीसी एंड अबाउट प्ले स्टेशन एज वेल, पीसी बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो बेल आइकन जरूर दबा कर जाना, वरना मिस कर दोगे तुम उसको, राइट। And join my Discord server to meet up with other PC enthusiasts like you. And अगर कोई PC configuration चाहिए तो वहाँ पर भी तुम्हारे को मिल जाएगी। And follow me on Insta to ask me about things personally, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। एंड छोटे मोटे न्यूज़ एंड अपडेट्स मैं वहीं पर डालना शुरू कर रहा हूँ थोड़े दिनों में, तो लुक फॉरवर्ड टू दैट। एंड 1000 सब्स के बाद चैनल Q&A भी होगा, तो वहाँ तुम अगर मुझे फॉलो करोगे तो वहीं पर तुम मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो सब चीज़ों के लिंक तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर ग्रेट वीडियो ऑन माई चैनल। दिस इज पर्श गर्ग साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टाटा, सी यू एंड पीस। फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़रूरी है।